नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएस न्यूज इंडिया और मैं हूं अजमत अली। चलिए चलते हैं लखनऊ, जहां नेशनल सर्जन डे और लेप्रोस्कोपी डे के अवसर पर लोहिया अस्पताल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने देश भर के साथ साथ नेपाल से आए मेडिकल छात्रों और वरिष्ठ सर्जनों को एक मंच पर जोड़ा। कार्यशाला की शुरुआत लोहिया अस्पताल से हुई और समापन एक होटल में शानदार समापन समारोह के साथ हुआ। इस मौके पर मौजूद थे डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर अवनीश कुमार, डॉक्टर आकाश अग्रवाल, डॉक्टर सतीश कुमार, प्रो, संदीप मिश्रा, डॉक्टर योगेश मिश्रा और प्रो, संदीप कुमार, डॉक्टर विकास सिंह जैसे देश के जाने माने सर्जन। मुख्य अतिथि के रूप में लोहिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर सी एमिडा सिंह ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जबकि आयोजन और संचालन की जिम्मेदारी संभाली डॉक्टर विकास सिंह ने। इस अवसर पर छात्रों ने वरिष्ठ सर्जनों से सवाल पूछे और शल्य चिकित्सा के आधुनिक पहलुओं को बारीकी से समझा। कार्यक्रम का आयोजन एएसआई यानी एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश चैप्टर और आरएमएल आईएमएस के जनरल सर्जरी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सर्जरी के क्षेत्र में यह आयोजन न सिर्फ एक शिक्षा का अवसर था, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बना। क्या क्या हुआ इस सेमिनार में, आप भी देखें एमएस न्यूज इंडिया के साथ। इंडिया के So that is how I have been associated with him for more than 12 years now. Surajit Bhattacharya sir, he has been not my direct teacher, but I have been reading his blogs. He is a very vivid writer out here. Amit Gupta sir has been my ATLS trainer in JPN Apex Trauma Center way back in 2012. Since then I have been connected with ATLS. Thank you for submitting my invite sir and being here. Vinod Jain sir has been very proactive as far as pushing me out here to do the better things systematically. If I use the word systematically, that is he has been here. Dr. Nikhil Singh, अगर मैं देखूं कि मुझे आगे चल के थोड़ा 2 साल बाद क्या बनना है, तो 2 साल बाद निखिल सिंह साहब बनना है, फिर 2 साल बाद और निखिल सिंह साहब बनना है. That is how. So he is out here as President UP chapter of ASI and very capable surgeon as well. And thank you all for being here. Dr. Nisha ma'am, thank you for accepting my invite to have Gynae on board. Whatever गलतियाँ वो सारी मेरी, I accept गलतियाँ on my behalf. This was the first live surgery event that we tried to have in our own department, and it was held on a Sunday for one simple reason. It was not just because of auspicious National Surgeons Day, which all over India is being celebrated. It's also because it was a Sunday. And the reason I chose Sunday for a workshop was so that our own residents from different colleges can shell out time without much hassle. It's not about our time, it's about their time as well. And I hope that we could do some justice to the same. Apart from whatever we are saying in the welcome address, I would definitely say that the striker, they have helped me a lot. Maybe they came up with a small idea. I made them, honey, I blew up the kid. So I'm so sorry that I blew up the program because it is supposed to be much bigger. That is what I have learned from my teachers, that whatever you do it in a grandiose manner. Live simple, but do big things. So I hope we are trying. In the same, we'll be having, I inaugurate, our director sir is busy with the faculty recruitment, but he has said that please start, and he will just join maybe in a few minutes. इसी सेशन में we had in the morning 4 hours of laparoscopic training, suture training, abdominal wall closure, and open suture training. We had, apart from residents, surgical residents, we also had gynae residents from UP-UMS, we had from Allahabad, we had from KGMU. Apart from that, we had also lot many interns and some students as well. जिन लोगों ने फीडबैक हमें ये दिया कि अब हम सर्जरी में जाना चाहेंगे in future. So if you were able to do that, I take that to be a pat on my back
that my team did a wonderful job as far as at least this initial inception is concerned. उससे पढ़ते पढ़ते थॉमसन कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। प्रोफेसर एन सी मिश्रा के फादर भी डॉक्टर थे, उन्होंने ग्रेज एनाटमी खरीदने के पैसे नहीं थे तो पूरी हाथ से लिखती थी आपके फादर साहब ने, जो छोटी सी पतली हाथ से हैंड रिटन ग्रेज एनाटमी। वो जमाना था, थोड़ा सोचिए। रुड़की आईआईटी, जो आज आईआईटी रुड़की है, जो रुड़की यूनिवर्सिटी बना, केवल 2 इंजीनियरिंग कॉलेज आए और 2 ही इंजीनियरिंग थी। ताजमहल बनता था, बिल्डिंग बनती थी, इमामबाड़ा बनता था, सिविल इंजीनियरिंग थी, इस्लामिक सिविल इंजीनियरिंग थी और गॉथिक और यूरोपियन सिविल इंजीनियरिंग थी, और जर्मनी में केमिकल इंजीनियरिंग थी। तो हार्डकोट बटलर केमिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज बना कानपुर में, क्या नाम है उसका, HBTI। और सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज एक गांव में, सहारनपुर के गांव में रुड़की में बना। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जब रिटायर हुए 1932 में और मेरे पिताजी पैदा हुए 1932 में, यहाँ पे 4 लोग तो मुझे दिख रहे हैं जिनके फादर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी थे, संजीव के और निखिल के। तो हम लोग पेडिग्री सर्जन है। मैं आपको इसका किस्सा सुनाता हूँ। मैंने भी मेडिसिन ज्वाइन कर ली थी और झगड़ा हुआ हमारे घर में, और जब मेरे बेटे ने मेडिसिन ज्वाइन कर ली तो क्या झगड़ा हुआ मैं बताता हूँ। संजीव के बच्चे डॉक्टर नहीं बने, बन गया है डॉक्टर। चलिए, सर्जन कैसे बने, और सुरजीत जी को थोड़ा सा ये रोष हो रहा है कि 99% सर्जरी में नहीं आ रहे हैं, उसका फायदा मैं आपको अभी बताता हूँ। अब कम से कम आपकी एंसिलरी सर्विसेज रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी और एनेस्थेसियोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो आपका सर्जिकल आउटकम इम्प्रूव हो रहा है। तो 1930 की बात है। मेरी ग्रैंडमदर बताती है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर who must have been 60-65 at that time, longevity wasn't much। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई होगी, तो वो उनको लेके तब सर्जरी पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, सर्जरी केवल 2 शहरों में होती थी साहब, लखनऊ में और आगरा में। लेडी लॉयल कॉलेज था आगरा में, और किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज 1905 में रखा गया। 1911 में पहला बैच निकला और 1918 या 20 में यहाँ सर्जरी, तो कैप्टन निगम साहब सर्जन हुआ करते थे, उनसे सर्जरी कराने गोलागंज में एक मकान किराए पे लिया गया। देहरादून से मेरा परिवार आया। गोलागंज जो है क्रिश्चियन कॉलेज के पास, KGMC से थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर दूर एक मोहल्ला है। और उनको, जहाँ तक हमको याद है, जो हम लोग समझते हैं कि प्रोस्टेटिज्म था, जिसको आजकल आप लुट्स कहते हैं, लार्ज प्रोस्टेट रहा होगा, उससे उनको, वो जमाना था, उस जमाने में आप लोग बहुत ऑपरेट किए होंगे, तो बड़ा सा ब्लैडर कैलकुलस बन गया था और एक्सरे में ब्लैडर कैलकुलस दिखाई पड़ता था। तो ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन में उनकी DOT हो गई KG मेडिकल कॉलेज। Thank you, sir. May I call upon Professor Sanjeev Mishra, sir, जिनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। बस ये कि हम काश उनके जैसे और थोड़ा बन जाए तो अच्छा होगा सर। मैं अगले इस पे बताना चाहूंगा डॉक्टर योगेश मिश्रा सर को। प्लीज आप मंच पे आए, इस आभार को हमारे ग्रहण करें सर।
Last but not the least, our very own Professor Sandeep Kumar sir. मेरा मानना है इससे बड़ी चीज किसी स्टूडेंट के लिए नहीं होती कि अपने टीचर को सम्मानित कर पाए सर। Yes, sir. It's up. सर इसी में प्लीज मैं आई कॉल ऑन वन मोर बिकॉज प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा अगर यूपी चैप्टर ऑफ एएसआई एंड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की तरफ से अगर हम सम्मानित ना करें। Yes, sir. निखिल सिंह से आप रुक रहिएगा बिकॉज सर प्लीज बिकॉज डायरेक्टर साहब की छत्र छाया में बहुत कुछ बिकॉज हिज सपोर्ट एंड प्रेजेंस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी फॉर एनी इंस्टीट्यूट एंड एनी पर्सन टू ग्रो and I'm really thankful for him to believing in me that we can push it forward. Thank you for being there, sir. Please. It's up. सर एक बार मैं डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सुराजित भट्टाचार्य, डॉक्टर योगेश और डॉक्टर संजीव मिश्रा सर से प्लीज बोलूंगा कि प्लीज एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आना सर शॉल के साथ ड्रेस कोड है सर। संदीप सर Yes, sir. It's sir. Now to this side, yes, sir. Thank you. संजीव सर भी आए हुए थे, तो जोधपुर से संजीव सर आए थे, आप भोपाल से आए थे, वहाँ पे आपको सुना था और उसके बाद आज सुनने का मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद आपको। तो बस आज के दिन में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सर्जन क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, अगर डिफरेंट एस्पेक्ट से कहें एक लेमैन की तरह, तो सर्जन में उनको एक भगवान दिखता है। खास करके जब आप पेशेंट को ओटी के अंदर लेके जाते हैं और बाहर जो अटेंडेंट वेट कर रहा होता है आपके बाहर निकल के आने का और उससे दो शब्द बोलने का कि आपकी सर्जरी अच्छी रही, सक्सेसफुल रही, सब बढ़िया रहा, उस समय में उसको कितना रिलीफ मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ दूसरे पार्ट से रिसीव किया हूँ उसको, जो हमारा कोई नज़दीकी ऑपरेशन थिएटर में गया है, और आप लोगों के लिए तो रोज का एक रोज की दिनचर्या का पार्ट है कि आप ओटी के बाहर निकलते हो और उसको बताते हो कि आपकी सर्जरी सफल रही, अच्छी रही। तो कितना आपको प्राउड फील होता होगा, बट उस पेशेंट के अटेंडेंट को क्या फील होता है उसके लिए आपको पूरी अपनी लाइफ उसके लिए थैंकफुल होता है वो। तो इसलिए आप एक स्पेशल हैं, इस इवन मेडिकल फैकल्टी में भी आप स्पेशल हैं। इस चीज़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन में दवा लिखता है वो जानता है दवा कुछ गड़बड़ होगी तो कल को हम दवा बदल लेंगे, बट ओटी में जब आदमी जाता है तो बहुत सारी तैयारियां करके जाता है और ये सोचता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर सब गलत ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी RML ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर विकास की लीडरशिप में, उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और आपको आज के दिन की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट प्लीज आप बोलते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर निखिल सिंह टू बी अपॉन द स्टेज प्लीज। और इस नेशनल सर्जन्स डे के दौरान डॉक्टर
प्रकाश सिंह है। मैं सर्जरी विभाग लोहिया संस्थान में प्रोफेसर के पद पर हूँ और आज 15 जून 2025 को नेशनल सर्जन्स डे और लेप्रोस्कोपी डे हम लोगों ने यूपी चैप्टर ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हमने मनाया, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक हमारे सेशंस चल रहे हैं, जिसमें 100 से ऊपर रेजिडेंट सर्जन्स और सर्जन्स जो पूरे सिर्फ यूपी से आए, बल्कि 4 सर्जन्स हमारे नेपाल से भी आए जो सीखना चाहते थे। सुबह 4 घंटे का सेशन पहले हमने उनको दूरबीन विधि के बारे में सिखाया, फिर 3 सर्जरीज लाइव ट्रांसमिशन भी हमने की। फिर डॉक्टर अमित गुप्ता दिल्ली एम्स से आए थे, जिन्होंने ट्रॉमा में लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल उसके ऊपर व्याख्यान दिया। इसके साथ में फ्लोरेसेंस गाइडेड सर्जरी के ऊपर भी व्याख्यान हुआ, जिसमें डॉक्टर निशा सिंह KGMU से और डॉक्टर आकाश अग्रवाल लोहिया संस्थान से ऑन्को सर्जन है, वो लोग व्याख्यान इस समय दे रहे हैं। इसके अलावा हमने जो लाइव सर्जरीज दिखाई वो रेजिडेंट्स ने बहुत अच्छे से देखी, उसकी बारीकियाँ समझी, जो उनको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ना केवल सिर्फ रेजिडेंट्स बल्कि कुछ हमारे ऐसे छात्र थे जो आगे चल के सर्जरी को अपना एज ऑप्शन लेना चाहते हैं। सो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे MBBS वाले छात्र हैं, जो आगे चल के बड़े सर्जन्स बनना चाहते हैं, और हम सर्जन्स जो कि हमेशा काम में इतने ज़्यादा रहते हैं, तो इट इज़ अ डे फॉर अस ऑल्सो टू सेलिब्रेट खुद की जो भी हमारा स्टैचर है उसको हम इस अच्छे से मना सकें। इसके ऊपर ये शल्य चिकित्सा सर्जन दिवस है। सर, आज जो पूरा सेशन दिन भर चला, तो अगर उसका पूछा जाए क्या निष्कर्ष निकला? सर, निष्कर्ष एक निष्कर्ष नहीं, इट वॉज मोर ऑफ टारगेटिंग कि जितने भी हमारे रेजिडेंट सर्जन्स होते हैं, बिकॉज ये हमारा कल है, उनको कैसे ट्रेन करना है बेहतर तरीके से अलग अलग विधाओं में, वो बहुत ज़रूरी है। अगर उनको हम प्रॉपर विधाओं में ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी लेगेसी को आगे नहीं ले जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में माननीय योगी जी के उससे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो, पर उनमें सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट समहाउ रेजिडेंट्स को अभी उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। और हम लोहिया संस्थान में रह के कम से कम हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको अपने साथ में बेहतर ट्रेनिंग प्रदान करके प्रदेश और देश में वापस जगह भेज सकें।